କଳାମାଣିକରୁ ଏଠି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି, ଏଠି ରେ ଅତେ ହଜିଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଳାମାଣିକରେ, ଯାହାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ରୀତି ଯୁଗର କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ଅନେକ କବିତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବା କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲେ ବି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାବ୍ୟ। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟରୁ ଏଇ କଳାମାଣିକରେ କବିତାଟି ଆସିଅଛି। ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଶୀର୍ଷକ। ଶୀର୍ଷକ ମାନେ ଟାଇଟେଲ୍, ଯାହାକି କଳାମାଣିକରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଝିବା, କ'ଣ ପାଇଁ କଳାମାଣିକରେ ଦିଆଯାଇଛି, କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି। 2ରେ ଦେଖିବା ଲେଖକ ପରିଚୟ ବା କବି ପରିଚୟ। 3ରେ ଦେଖିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ଘଟଣାଟି। ଏବଂ 4ରେ ଦେଖିବା ବିଷୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ଯାହା ଯାହା ଆମର ବିଷୟ ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବା ଶୀର୍ଷକକୁ। ଶୀର୍ଷକରେ ଦେଖ, এই ଫଟୋଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଛୋଟବେଳର ଫଟୋ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏକ ରତ୍ନ, କ'ଣ କହିଲ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ମାଣିକ। ଯେଉଁ ବିଷୟର ନାଁ ଲେଖାଯାଇଛି କଳାମାଣିକରେ, ରେ ଲଗାଯାଇଛି ମାନେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ବାପରେ, ଧନରେ, ସୁନାରେ କହିକି ମା ମାନେ ଡାକନ୍ତି, ସେମିତି ଏଠି ଯଶୋଦା ମାତା ଡାକୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିକି, କଳାମାଣିକରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ କଳା, ଏଇଠି ଟିକେ ଓରା ହେଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କଳା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ମାଣିକ ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ପଥର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ କଳା ମାଣିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମାଣିକର ରଙ୍ଗ ଇଷତ୍ ଲାଲ, ଜାଣିହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଳା ମାଣିକରେ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି। ଲେଖିବ, ମାଣିକ ହେଉଛି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ପଥର, ତାହାର ରଙ୍ଗ ଇଷତ୍ ଲାଲ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ କଳା। ତାଙ୍କ ମାତା ସ୍ନେହରେ, ମାତା ଯଶୋଦା ସ୍ନେହରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାଙ୍କୁ ମାଣିକ ସହିତ ତୁଳନା କରି କଳା ମାଣିକ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଇଏ ହେଉଛି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ କଳାମାଣିକ ବିଷୟଟି ଆସିଅଛି କବିତାଟି। ଇଏ ହେଉଛି ମୂଳ ବହି, ତାର ପ୍ରଚ୍ଛଦ, କଭର ପେଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପ୍ରଚ୍ଛଦ। ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁ ପୁରୁଣା ସମୟରେ ଏ ବହି, ରୀତିଯୁଗ ସମୟର। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ନିଜେ, ରୀତିଯୁଗର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଷ୍ୟକାର। ଏବେ ଯିବା କବି ପରିଚୟ। କବି ପରିଚୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ରୀତିଯୁଗ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ରଷ୍ଟା। ମୁଁ କହିଛି ସାହିତ୍ୟର ଉତ୍କର୍ଷତା, ସାହିତ୍ୟର ଭାଷା ଶୈଳୀ, ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା, ଇଏ ସବୁକୁ ନେଇକି କାବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ଉପର କ୍ଲାସ୍ ମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ିବ। ଯଦି ଏବେ ଖାଲି ଅଳ୍ପରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଆଦି କବି ବୋଲି କହୁ। କାହିଁକିନା ସେ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ପ୍ରଚଳିତ ସାହିତ୍ୟ ବା ପ୍ରଚଳିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଶାରଳା ଯେତିକି ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶାରଳା ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିଲେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ। ଜାଣିଥିବ 5 ଜଣ ସଖା ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ଉପରେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଶିଶୁବନ୍ତ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଏମାନେ ସବୁ। ତାପରେ ପରେ ଆସିଲେ ଏମିତି ରୀତି ଯୁଗ, ପ୍ରଗତି ଯୁଗ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ଆମେ ଜାଣିବା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରୀତି ଯୁଗରେ କବି। ବିଶେଷ କରିକି ରୀତି ଯୁଗର କବିମାନେ ଶୈଳୀ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶୈଳୀରେ ସବୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଶୈଳୀ ସବୁ ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବାଲି ପଡ଼ି ତୋ ଚରଣୁ ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜେଣୁ, ନୌକା ନାୟିକା ହେଲେ ବୁଡ଼ିବ ଭେଳା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କବିତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ୁଛେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର କବିତା। ତାଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରୁ ଆସିଛି। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟ ଥିଲା
एत पपुलार होता तेणु अभिमन्यु सामंत सिंगार को विदग्ध कवि बोली कहुए जमी उपेन्द्र भंज को कवि सम्राट कहुए सेमती विदग्ध कवि बोली कहुए क्या अभिमन्यु सामंत सिंगार को से सुंदर गाँवली भाषा केते सुंदर सब कविता लिखते विदग्ध चिंतामणि प्रेमकला रसवती सुलक्षणा बाघगीत इत्यादि यापर ये है कवि परिचय एबे आसुची प्रसंग निर्देश क्यों प्रसंग आरंभ हो देख दे कृष्ण संध्या समय गाई गोठ धरी फेरबार विलंब कर तेणु माता जशोदा तांको अपेक्षा करिकी रही श्रीकृष्ण प्रत्यय बा प्रत्येक दिन गाई गोठ नहीं वन को जाती चरेबा निमंते सेठी सांग मान सहित खेलती बुलती मजा करती थट्टा करती संध्या बेलू फेरी आसती किंतु एकदा संध्या बेलू ठीक टाइम रे फेरी ना से माँ मनरे बड़ चिंता पड़ जाइए कौन करू मो पु चिंता कर भाली होती कथा मन पकाउन से कथा आम पढ़ा पूरा कवितार ये होगा प्रसंग निर्देश एबे जा कवितार व्याख्या पकड़ कवितार व्याख्या उपरे धीरे घेन कानन रे कृष्ण विलंबित बात्सल्य ममता घेनी भालुछंती मात कला माणिक रे प्रत्येक तांकर पद भितर कला माणिक संबोधन रही आम कला माणिक गाइबानी बारंबार आम केवल पदटी को गायन करिया ताले धीरे घेन धीर माने पंडित माने धीर पंडित माने हे पंडित माने शुणिबा हुंतु हे ज्ञानी माने शुणिबा हुंतु एटी कवि कहउछन केउ कथा आमे शुणिबा यशोदांकर विलाप कथा पिला कथा से मने पकेछन केमती देखो माँ बसी संध्या समय गाई सब किछि किछि फेरी आसिलेनी समय संध्या पुओ फेरुनी से समय कौन कर ना माँ चिंतार अच्छा नेक्स्ट पेज बुझीगला यहाँ बात्सल्य ममता साधारणतः बात्सल्य ममता क्या कहुए माँ आ पुओ बा माँ झीओ बापा झीओ ये जो ममता को बात्सल्य ममता बोली कहुए बात्सल्य ममतार घारी होई माँ अपेक्षा कर पुओ को परवर्ती देखा यहाँ फास्ट लाइन टी ना मिस हो जाए कौन हम निधन संखाली मोर दरिद्र पसरा अंधलौड़ी बाबूरे रुदरत्नहारा ताले निधन संखाली धनहीन जहाँ पाखे धन नाई ता पाखे निधन हो तू तू ताकू धन दौ सुख दौ शांति दौ आउ कौन अंधर लौड़ी जदि जड़े अंध अच्छी तापाई लौड़ी तापाई बाड़ी जी बाड़ी जष्टी बाड़ी जी तापाई प्रिय तू मध्य से मो पाई प्रिय ये दुईटा घटना को नेकी माँ कहउचंदी जेमिति तू अंध पाई लौड़ी भली जेमिति निधन पाई धन तू सेमिति मो पाई तू अति प्रिय तू माँ कथा हूँ तू मो पाई सेतिके प्रिय ताल नेक्स्ट कौन होची मजीव जीवन तू ही नयन प्रतिमा तोते की पासोरी हेब मोर सुख सीमा मो जीव जीवन मोर जीवर जीवन तू मोर जदि जीव मु जदि गोटे जीव हुए मो जीवर जीवन होचु तू ताले गोटे जीवर श्रेष्ठ श्रेष्ठत्व कौन से बंची रहिबा जीवित रहिबा तार जीवन प्राण ही तांको बंचे रखि थाए माँ कहउछन तू जदि मोठू दूरे जीव मो प्राण चली जीव प्राण आउ रहिबो ताले मो जीव जीवन मो जीवर जीवन मो नयनर प्रतिमा मो नयनर भी प्रतिमा तू मु जदि देखि पारुछि ताले तो पई मो आखि पाई नो तो पई देखि पारुछि तू जदि दूरे गलु मते देखा जीवनी तोते की पासुरी हबो मोर सुख सीमा तोते पासुरी हबोनी पासुरी माने दूरेबा तोते मु भूली परिबिनी दूरे परिबिनी तू मोर सब सुखर सीमा सबरो सीमा थाए हसिबार सीमा थाए बढ़िबार गछ गोटे बढ़िबार गोटे सीमा थाए गछ बढ़ी बढ़ी आकाश को छुई जाए ना गोटे लिमिट थाए नुहे कि सबू प्रत्येक जिन तुम घर हबार गोटे सीमा थाए गोटे देशर गोटे सीमा थाए ये माता कहते मोर सुखर सब सुखर सीमा हूँ तू तू जदि चलीगलु मो जीवन अंधकार हो सीमाहीन होगी मो अवहेलित होगी पड़ रही ताले परवर्ती नेक्स्ट देखा डरू थाऊ अंधार को रखी जाऊ गोरु
जनक जननी सुख कहीं पाई सारू डरू था अंधार को डरुंट बस छोट पिला साधारणतः अंधार को डरी था कृष्ण भी डरुंट छोट होती अंधार घर भर घोड़ी डर छाई देखले भी डर डरू था अंधार को तू अंधार देखले भी डरू था तू समस्त पिला भली तू भी सामान किसी अलग नुह सब पिला डरती तू भी डरुचु आउ रखी जाऊ गोरु तू गोरु आसु तू सकाल पाखु बाहर जाऊ गोरु चोरी पुणी फेरी आसु गोरु रखी दो पुणी खेल पड़ाऊ ताले एते सब व्यस्त रोचे तो पिला सांग मान सहित बापा मार सुख गेल केतबेले हबु माँ टी तो गेल कर धर कोड़े धर ये केतबेले करू तेणु तू कौन मो कथा मन पड़ूनी तू पलैया कहीं ना से दिन फेरी ना संध्या हो जाए नेक्स्ट देखा वृद्ध काले तू मोहर एक नंदन रुदताप विनाशने तू हरि चंदन वृद्ध काले साधारणतः बापा माँ मैंने पिला जत्न करके खाया पीवा देकी बड़ करता कहीं ना पिलाटी बड़ है बापा माँ सेवा जत्न ठीक कर देख जो वृद्ध हो जाए माँ वृद्धा हो जाए माँ चिंता कर वृद्ध हो वृद्धा हो ताले मोर सेवा जत्न करियो कि तू करू तू मोर सब किछि वृद्ध काले तू मोर एक नंदन एक माने गोटी मात्र एकमात्र नंदन पुत्र मोर आउ कहीं नाही द्वितीय नाही हृदताप विनाशने तू हरि चंदन आज हरिचंदन ताकू बुझियो टिके पूर्वे एबे सिना तुम एसी लगे दउछो फैन लगे दउछो गरम हैला बेलकू पूर्वे गरम हेले ये उत्ताप रक्षा पाइबा पई हरिचंदन बोली एक चंदन को देहरे लेपन करुले कृष्ण एठी माँ कहउचंदी जे तू मो पाई तू ही हरिचंदन मो पाई एक्स्ट्रा हरिचंदन किछि आनिक लगेया दरकार नै तू मो पाखर थिले मो देहर शीतलता अछि बुझियो जे नै तू जदि मो पाखर नाहु ताले मोर शीतलता चल जाइछि बुझी न हेले मु कहिबी मत पचार बुझेदेवी भावुँ बुझी पार्थ समस्ते आमर उद्देश्य ये सुंदर सुंदर चित्र तुम कलेक्शन करके तुम केवल भलसे बुझापी आ यार अधिक किसी माने ना गोटिका धाम स्वर नरुचते नाचिलांच मागु थाऊ लवणी केमंते ताले गोटिका स्वर अधाम पुली खंड ये सब हूँ दुग्ध जातीय खाद्य पदार्थ आ सुस्वादु अमृत तुल्य सुस्वादु किंतु से सब तोर मन ना तू ताकू थू थू कर काट दू ताकू खाऊनी खाऊ क्या ना गाँव जाकि नाचिकी क्या लांच मागू मुझे नाचिदेवी मत दबा ना लवणी 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 खाइबा को एत स्वादिष्ट नुह टे खटा खटा लगे किंतु ताकू खाइबा तू प्रस्तुत हो जाऊ किंतु ये सब खाऊना माँ मन पकड़ तार खाद्यर कथा नाचिकी श्रीकृष्ण देख नाचिकी मागुंट खाइबा नाच देखिकी से दौरान राजपुत्र किंतु तांको एते सब खाइबा दिया जाउची से खाउना जाकि नाची नाची लवणी मागुंट परवर्ती कौन रही तोली मुधोइले गोली होई जाऊ तुही तो दुर्बल देखी काहे पशिबई मुही तोली धोइले जदि मु कोळेई धरे ताले गोली हो जाऊ मो देहरे लागी जाऊ मो देहरे मिसी जाऊ एते छोट होइछु जदि गोटे हाथी मूषाटी को धरिया चेष्टा करियो ताले से निश्चित भाव में जो आकार अच्छी आकृति अच्छी यह अनुसार से भारी कम बेसी जना पड़ोनी एत छोट जना पड़ो जे हाथी को लगभग माँ एठी कथार कहते जे तू एत दुर्बल एत छोट मत लगुनि बापा माँ मान सब लगी था मो पिला छोट मो पिला को यही खाइबा जिते तुम खाई दो माँ कह आउ टे खाईदे पेट देखा जाऊँ खाई ना सुखी गलुणी तुम्हें जिते मोटा होता ना कहीं से भाई माँ कहते तोते कौन तोली जदि मुझे धरी निए तू गोली हो जाऊ तोते मुझे गाईदेवी केमी मारिबी केमी जदि कृष्ण किसी दुष्टामी कर भांगी देख माठिया को जदि दुष्टामी कर माँ मारे आस ये कुनी दौड़ दौड़ी जाकि माँ को कलई पकाउं आउ मारिया को इच्छा भी होनी बुझे मारिया को इच्छा आसुनी तापर कौन अच्छी डाकी नीलो भांति बोली डरू थाई मने बार बार बारू थाई जीवा पाई बने डाकिनी माने डाहाणी से समय राक्षसी डाहाणी स्वभाव किसी थे से बुलूले लोभ कर देखिक जो गोटे गुलगुलिया पिला होते दृष्टि पकई दिखती लोभ करते बोली कला टिकाट लगे दिखती देखिए नुआ गाड़ी किणले तले छिंडा चप्पल टे लगे दिखती छाँचुन टे बांधि दिखती
घर पाखे छाँचुड़ी मारि नुआ घर करते कहीं आमर गोटे परंपरा अच्छी जे दृष्टि न लागू सब सुंदर जिनस को दृष्टि लगी जाए। श्रीकृष्ण गुलगुलिया होते सुंदर होते से जाइए वन को माँ कहते डाकिनी भी तोते देखिले लोभ कर डाहाणी ताल तू केमी मत छाड़ी चल जाइु देख कृष्ण खेलुंट ये डाहाणी दी जन केमी अनेई तलू अनेई खाइबा है। नेक्स्ट से मुझे बार 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 मना करुच्ची तू वन को जाना कारण डाकिनी लोभ कर देखी। नेक्स्ट जीवा निशाचर मातिबार शुभुची श्रुति की मुडंकुणी छाड़ी देली बन को कहीं निशाचर खाली डाहाणी ना रात्रि बड़ निशाचर अच्छा देख निशाचर केड़े विशाल शरीर धरी भयंकर रूप से अनेई ये हूँ निशाचर निशारे चरे जे रात्रि जे गमन करें अर्थात ये नकारात्मक अर्थ दुष्ट शक्ति मातिबार शुभुची मातिबार माने जमी आम कहते घर पाखे छुआ द्वारा माति जाना दीपर बेले तुम खेल बाहर माँ कहे कौन हे छुआ द्वारा माति बड़ थली आनी तो पूरे नहीं आम डरिकी जाती सेमती एठी माँ कह निशाचर माति जाना शुभुची श्रुति की श्रुति माने कान को मुंड कुणी छाड़ी ये कहीं निजक नकुणी कौन निजक गाली दौरान धिकार कौन माँ घर पाखे रागिगले बेले बेले कहते मतलब विष दे दिए खाई मरी जाए मु दुष्ट मुई डकुणी मुई डाहाणी मो पुओ को छाड़देली ना मुझे चाहिए मो पुओ को अटकई पारि मुई छाड़देली मुई डाहाणी निजक निजे धिकार कर कहीं छाड़ी निशाचर बुलूँ मु कहीं छाड़ी मो पुओ को। परवर्ती झाड़ बहुथिब अंगु लगी झांझी खरा श्रम पाई तरु तले बसी परा झाड़ बही जाऊ ये जो प्रचंड निदाग प्रचंड ग्रीष्म तापर तो देहरु गम गम ही झाड़ बही जाऊ एमती मो देहरु भी झाड़ बही जाऊँ पड़ा बेले ये खरा ना घर भितर तथा झाड़ बही जाऊँ तो सेठी प्रचंड खरा हो झाड़ बही जाऊ देख झाड़ बही जाऊ सब बिंदु बिंदु हो झाड़ सब श्रीकृष्ण मुहर बही जाऊँ आउ कौन हो से श्रम पाई तले बसी जाइए कौटी गछ मूल शोई पड़ते माँ आशंका कर गछ मूल तू बसी जाइबू कहीं नथिबे तो पाखे राजापुत्र घरे थिले तांको चामर रे एमती बिंची दिया जाता पवन से ना इच्छा से जाऊँ गो गोष्ठ नहीं कि गाई चरवा निमंते जानिला। परवर्ती जीवा नेलु नहीं काहीं पाई तो कोठाऊ छता बने कंटा लागी होए मृदु पाद चिंता कौन है ताले तू कहीं कठाऊ नेलुनी कहीं छता नेलुनी छता कौन पाई दरकार हुए खरा हेले वर्षा हेले खरा कथा कह आउ कठाऊ कौन पाई आवश्यक हुए ना पादरे कंटा फुटजुनी आम जमी जोता व्यवहार कर समय कठाऊ था कठाऊ माने काठरे निर्मित पादुका ताकू पादुका भी कहुए कठाऊ भी कहुए आम जहाँ जोता ए कहते श्रीकृष्ण पिंधिक जाते देखा हेनी बोली मुझे जूम कर देखिपर ये दुटा कठाऊ बोली कहुए विशेषकर काठरे निर्मित कहुए कठाऊ श्रीकृष्ण पिंधि गले कोमल पादरे कंटा फुटिज ना माँ ए आशंका कर तू तो कठाऊ नहींनु छता नहींनु ताल तो कोमल पादरे कंटा फुटिज कि नहीं तू कष्ट पाइबू रक्त बाहर जंत्रणा छटपट हेबू से कथा मन पकईकि भाली होपर कौन रही कान डेरी थाई एका तो बेणु गीत को आज किंपा शुभु नहीं भावुची मन को प्रत्येक दिन श्रीकृष्ण वन को गले से बसिकी कदम गछ मूल बंशी बजाती ये बंशीर सुंदर स्वन आसिक माँ कानर बाजे माँ आश्वस्त रुहति मो पुओ ठीक अच्छे ये थी शुणी पारती घर पाखु मो पुओ ठीक अच्छे कि जो आज पुअर आ बंशी स्वर शुभु ना तेणु माँ बेसी बेसी चिंता कर देख केमती कृष्ण बंशी बजाऊँ जो शैली में माँ केमती चिंतित हो पड़ते आखिर धार धार लुह बही जाऊँगी से मन पकाउन से चिंता कर मो पुओ कौन कला कौटी गला तुम तुम जब कौन कारण विलंब हो जाए तो बापा माँ व्यस्त हो जाती एटी सेमती श्रीकृष्ण विलंब हो माँ चिंतित हो पड़ते ये सब शब्दर अर्थ तुम मैंने देखीदेव निजे मुझे तुम दे दूसरी ये देखीदेव पर बही में अच्छी देखीदेव मुझे कहूना एवं नेक्स्ट पेज रे आम रही धन्यवाद धन्यवाद रु खंडे खंडे उड़ी जाइए तेणु से खंडिया खंडिया धन्यवाद नहीं कि आज क्लास ये आम शेष करवा परवर्त समय नुआ क्लास रे हम देखा प्रिपेयर्ड बाय संजय सार ओडिया
संजय सर ओडिया चैनल तुम उपलब्ध हो पाई धन्यवाद समस्त को नेक्स्ट अन्य क्लास रे पुणी आउ थे एमती नुआ प्रकार पीपीटी सहित आम क्लास नवा।